خواتین حضرات خوش آمدید، آداب، گڈ مارننگ آپ سب کو ہو استقبال پروگرام سلام جے کے میں جو آپ اس وقت گلستان نیوز کی نشریات میں دیکھ رہے ہیں، اور میں ہوں آپ کا میزبان اشفاق گوہر، اور میرے ساتھ آج کی نشریات کو آپ تک پہنچانے کے لیے ہیں میں ہوں آصف رشید۔ سامعین ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس پروگرام میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ ملک کی اہم ترین خبر سے آپ کو روبرو کروائے، ریاست کی سیاست پر بات ہو، کچھ تجزیہ نگاروں اور تبصرہ نگاروں سے بات کریں تاکہ خبر کی تہ تک جا کر آپ کو پورا اپڈیٹ ہم کریں، اور آج بھی اس سلسلے کو ہم جاری رکھیں گے۔ لیکن امید یہ ہے کہ آپ کی محبت جو ہے وہ ہمارے ساتھ رہی، آپ کا فیڈ بیک جو ہے وہ لگاتار ہمارے ساتھ رہے گا، اور فیڈ بیک اور جو آپ کا فیڈ بیک رہتا ہے وہ ہمارے لیے اس لیے امپورٹنٹ رہتا ہے تاکہ ہم اپنے مستقبل کے پروگراموں کو اسی طریقے سے ترتیب دیتے ہیں، اور مجھے امید ہے کہ آپ اپنا فیڈ بیک ہمارے ساتھ فیس بک، یوٹیوب اور ٹویٹر کے ذریعے ہمارے تک پہنچائیں گے تاکہ اس پروگرام کو مزید بہتر بنایا جا سکے۔ تو کرتے ہیں خبروں کا آغاز، اور آج سب سے پہلے وہ خبر آپ کے سامنے رکھیں گے کہ کل صدر ہند کی طرف سے باضابطہ طور پر ایک آرڈیننس جاری کر دیا گیا ہے، اور یہ آرڈیننس جو ہے وہ رام ناتھ کووند صاحب نے کل رات دیر گئے جاری کر دیا، جس میں ٹرپل طلاق معاملے پر ایک بار پھر سرکار نے آرڈیننس لایا ہے۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ سپریم کورٹ کے ہدایات پر سرکار کی طرف سے قانون بنایا گیا تھا، جسے لوک سبھا کے اندر تو پاس کیا گیا تھا، راجیہ سبھا کے اندر یہ اٹک چکا تھا، بعد میں آرڈیننس لایا گیا تھا، پھر دوبارہ لوک سبھا کے اندر یہ چلا گیا، اور وہاں پر کوئی افہام و تفہیم نہ ہونے کی وجہ سے یہ معاملہ جو ہے پھر اٹک گیا تھا، اور کل رات دیر گئے ایک بار پھر آرڈیننس جو ہے ٹرپل طلاق کے معاملے پر وہ سرکار کی طرف سے رکھا گیا تھا، اور صدر صاحب نے اس کی منظوری دے دی، اور 22 جنوری کو جو ہے آرڈیننس کا پچھلے آرڈیننس کا جو ہے وہ میعاد اختتام ہو رہی تھی، اور دوبارہ اب آرڈیننس جو ہے وہ لانے کی کوشش کی گئی، اور کل باضابطہ طور پر اس کی منظوری ہوئی ہے۔ یعنی فی الحال ٹرپل طلاق غیر قانونی ہوگا، اور اس پر جو تمام لوازمات ڈسکس کیے گئے تھے پارلیمنٹ کے اندر، چونکہ قانون بنا نہیں، لیکن اسی طرح سے اس کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف کارروائی ہوگی۔ تو پریزیڈنٹ نے کل نوٹ دیا ہے ٹرپل طلاق کو لے کر، اور ساتھ ساتھ کل ایک اور بل، انڈین میڈیکل ایسوسی ایشن امینڈمنٹ بل 2018 اور کمپنیز امینڈمنٹ بل 2019 کو بھی آرڈیننس کے ذریعے سے جو ہے وہ سامنے رکھا گیا ہے۔ یعنی کل ملا کر یہ اہم ترین قانون جو ہے وہ کل بن چکے ہیں، اور آج سے باضابطہ طور پر نافذ العمل وہ ہوئے ہیں۔ تو یہ بات تھی ملک کی بڑی خبر کی جو ہم آپ کو بتا رہے تھے، اور کل کی خبر یہ بھی تھی کہ کل بھارتیہ جنتا پارٹی کا 2 روزہ اجلاس اختتام پذیر ہوا، اور اس اجلاس کے اختتام پر جہاں کل وزیر اعظم صاحب نے ملک کے اندر سیاست جس طریقے سے ہو رہی ہے 2019 کے حوالے سے اس پر گفتگو کی، وہیں پر کانگریس کا نام لیے بغیر اور حزب اختلاف کا نام لیے بغیر کہا کہ ملک کو کمزور کرنے کے لیے اپنی سیاست کو چمکایا جا رہا ہے، اور ضرورت اس بات کی ہے کہ ملک مضبوط ہاتھوں میں جائے اور ملک کے اندر ایک مضبوط حکومت بنے، اور مضبوط حکومت کے لیے ضروری ہے کہ بھارتیہ جنتا پارٹی کا کاڈر ایک دن بھی ایسا نہ چھوڑے جس دن وہ کام نہ کرے، اور آج سے ہی اپنے بوتھوں کو مضبوط بنائے تاکہ بھارتیہ جنتا پارٹی ہر بوتھ سے کامیاب ہو کر آئے۔ اور گرینڈ الائنس جو کل یو پی کے اندر بنا تھا اس پر بھی کل وزیر اعظم صاحب نے کھل کر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ جن لوگوں کے خلاف پرچے ہیں اور جو لوگ اپنی ضمانتیں پارٹیوں کے نہیں بچا پائے ہیں، وہ اب ایک بڑا الائنس بنا رہے ہیں، اور صرف اس لیے بنا رہے ہیں تاکہ ان کے کالے چٹھے سامنے نہ آئے۔ تاہم انہوں نے اس بات کو دہرایا کہ بھارتیہ جنتا پارٹی اپنے بل بوتے پر سرکار ضرور بنائے گی، اور اسی طریقے سے آگے بڑھے گی جس طریقے کا پروگرام 2014 میں سامنے رکھا گیا تھا، یعنی سب کا ساتھ سب کا وکاس، اور یہی وجہ ہے کہ اس بار پھر مودی سرکار کے نعرے بھی اس وقت گونجتے سنائی دیے گئے۔ تو یہ ملک کی بڑی سیاست تھی جس پر ہم بات کر رہے تھے، لیکن واپس ذرا ریاست کی اور آتے ہیں۔ اور وادی کشمیر میں کل سیکیورٹی ایجنسیز کو بڑی کامیابی حاصل ملی ہے، کیونکہ سیکیورٹی ایجنسیز نے ایک مصدقہ اطلاع ملنے پر کل جو ہے وہ ایک بڑے علاقے کا کارڈن کیا تھا، کلگام کے کاٹھی پورا گاؤں کے اندر۔ جب یہ کارڈن کیا گیا تھا تو اسی وقت یہ بات سامنے آ رہی تھی کہ شاید اس علاقے کے اندر 3 یا 4 ملیٹنٹ چھپے بیٹھے، اور جوں یہ آپریشن چلتا گیا اور اتنی خبریں جو ہے وہ باہر آنا شروع ہو گئی۔ بہرحال ابھی جو پولیس ترجمان کا ٹویٹر ہے انہوں نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ 2 ٹاپ موسٹ ملیٹنٹ کمانڈر مارے گئے ہیں، اور A++ کیٹیگری کا کمانڈر جو تھا وہ بھی مارا گیا ہے، جو البدر
کو بیسک بون جو ریت کی ہڈی جسے مانتے تھے البدر کے لیے اسے دیکھا جا رہا تھا. زینت الاسلام نامی ملیٹنٹ کمانڈر جو ہے وہ مارا گیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا ایک ساتھی بھی جو ہے شکیل ڈار وہ بھی کل اس انکاؤنٹر میں ہے مارا گیا. رات کو تقریباً جو ہے یہ انکاؤنٹر کی جو تصدیق مارنے کی تصدیق جو ہے وہ رات 1 بجے کے آس پاس جو ہے وہ ہوئی تھی اور یہ کہا گیا تھا کہ یاری پورہ کلگام کے اندر یہ 2 ملیٹنٹ جو ہے وہ مارے گئے ہیں جبکہ 2 کے فرار ہونے کی خبر بھی آئی تھی. علاقے کے اندر سخت ترین محاصرہ کیا گیا تھا, ناکے لگائے گئے تھے, تاہم ناکوں اور محاصرے کے بیچ تصادم آرائی کی خبریں بھی موصول ہوئی ہے. تاہم پولیس اور مظاہرین کے بیچ جھڑپ جو رات دیر گئے تک ہوئی ہے اس میں کچھ لوگوں کے زخمی ہونے کی بھی خبر آ رہی ہے. لیکن فی الحال بڑی بات یہ جو پولیس کی طرف سے سامنے رکھی گئی ہے کہ 34 راشٹریہ رائفل اسپیشل آپریشن گروپ اور جموں کشمیر پولیس نے مشترکہ کارروائی کرتے ہوئے 2 ٹاپ موسٹ ملیٹنٹ کمانڈرز کو مار دیا ہے. ادھر آج احتیاطاً جو ساؤتھ کشمیر کے اندر ریل سروس چلتی ہے اسے بند کر دیا ہے اور آج احتیاطاً ریل سروس کو منقطع رکھنے کی بات جو ہے وہ کہی گئی ہے. اور گراؤنڈ پر کیا کچھ ہلچل ہے اس وقت اس پر مزید بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ فدا حسین جوائن کر چکے ہیں. فدا, کیا کچھ تازہ ترین تفصیلات اس وقت کلگام علاقے کی اندر ہے جہاں پر 2 ٹاپ موسٹ ملیٹنٹ کمانڈر مارے گئے ہیں اور ایک کا نام زینت الاسلام جو پولیس ریکارڈ کے مطابق A++ کیٹیگری کا ہے اور اس کے اوپر پولیس نے بھاری رقم کا انعام بھی رکھا تھا. 12 لاکھ 12.5 لاکھ روپیہ انعام تھا اگر کوئی اس کے بارے میں خبر دیتا اور یہ وہی ملیٹنٹ کمانڈر ہے جو ٹاپ موسٹ ملیٹنٹ کمانڈروں میں گنے جاتے تھے اور آلموسٹ اگر دیکھا جائے تو اوپر کی کریم اوپر والے ٹاپ کمانڈرز کی فہرست اب ختم ہو گئی ہے. لیکن آج کے دن کی کیا کچھ تفصیلات آپ کے پاس ہے صبح سے؟ دیکھیے گورنر میں آپ کو بتا دوں کہ کاٹ پورہ یاری پورہ جو جھڑپ تھی وہ کل شام کو ہی اختتام پذیر ہوئی اور جو پہلے ہی افواہیں گشت کر رہی تھی کہ اس میں ایک ٹاپ کمانڈر جو ہے وہ ہلاک ہوا ہے اور اس کے بعد میں پشٹی بھی ہوئی ہے پولیس کی طرف سے فوج کی طرف سے بھی. لیکن رات کے 10 بجے تک یہ افواہیں کافی گشت کر رہی تھی کہ سوشل میڈیا پہ کہ شاید زینت الاسلام جو ہے وہ اس انکاؤنٹر سے بھاگنے میں کامیاب ہوئے. بتا دوں آپ کو کہ 5:30 بجے شام کے آس پاس کاٹ پورہ یاری پورہ کا علاقہ جو ہے وہاں سے 34 RR CRPF اور SOG کلگام جو ہے وہ کارڈن کے لیے جا رہی تھی لیکن ان کی نظر جو ہے وہاں پر ایک کھیت پر پڑی. وہاں سے کچھ حرکتیں ان کو دکھائی دی تو اس کے بعد جو ہی ملیٹنٹوں کو بھی ان پہ نظر پڑی تو دونوں طرف سے گولیوں کا تبادلہ جو ہے وہ شروع ہوا. اور یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ انیشلی جو وہاں پہ زینت الاسلام ہے وہ ہلاک ہوا, وہاں پر پہلی گولی اس پہ لگی تو اس کے بعد جو ان کا ساتھی تھا وہ بھی ہلاک ہوا. اور فوج کو یہ بھی خبر تھی کہ شاید وہاں پہ تیسرا ملیٹنٹ بھی ہے جو وہاں پر کسی گھر میں چھپا ہوا تھا تو اسی لیے وہاں پر رات دیر تک وہ آپریشن چلتا رہا. لیکن بعد میں جب وہاں پہ موسم بھی خراب ہوا اور جو لوگ تھے وہ بھی باہر آئے اور احتجاجی مظاہرے جو ہے وہ سڑکوں پر نظر آ رہے تھے, سیکورٹی فورسز پر سنگ کا استعمال ہوا تو سیکورٹی فورسز نے بھی طاقت کا استعمال کیا تو اس کے بعد وہاں پر اس جھڑپ کو ختم کیا گیا اور وہاں سے فوج جو ہے وہ واپس نکلی تو اس کے بعد بھی ایک بار پھر وہاں پر پتھراؤ کی خبریں دیکھنے کو ملی. آج صبح کی بات اگر کرے گی تو وہاں پر پہلے ہی پولیس نے یہ کہا کہ انکاؤنٹر سائٹ پہ جو عام لوگ ہیں وہ نہ جائے اور بہت ساری جگہوں پر ریسٹرکشنز بھی لگا دی گئی ہے کیونکہ زینت الاسلام ایک ایسے ٹاپ کمانڈرز میں سے شمار کیے جاتے تھے جو پہلے حزب المجاہدین سے تعلق رکھتے تھے لیکن اس کے بعد انہوں نے حزب المجاہدین سے علیحدگی کا اختیار کر لیا اور وہ البدر کے ٹاپ کمانڈر میں سے جانے جاتے تھے. اور وہاں پر جب یہ خبر پھیل گئی کہ البدر کا ٹاپ کمانڈر علاقے میں پھنسا ہوا ہے تو آس پاس کے جتنے بھی علاقے کے لوگ ہیں وہ وہاں پر جمع ہوئے اور احتجاجی مظاہرے شروع کیے گئے. لیکن آج دن کی اگر بات کریں گے کیونکہ یہ دونوں جو ہے ان کا تعلق ضلع شوپیان سے ہے اسی لیے جب وہاں کل شام کو یہ خبر پھیل گئی تو وہاں پہ علاقے میں انٹرنیٹ کو بھی ڈاؤن کیا گیا. جی گوھر, چلیے بہت شکریہ فدا حسین ہمارے ساتھ جوائن کرنے کے لیے اور تفصیلات فراہم کرنے کے لیے. زینت الاسلام اور شکیل ڈار کی تصدیق پولیس کی طرف سے کر دی گئی ہے اور کہا گیا کہ دونوں ملیٹنٹ جو ہے وہ مارے گئے ہیں جن میں زینت الاسلام کے بارے میں کہا جا رہا کہ A++ کمانڈر تھا اور اس کے سر پر 12.5 لاکھ روپے کا انعام بھی رکھا گیا تھا. البدر ملیٹنٹ آؤٹ فٹ کا ٹاپ موسٹ کمانڈر 2008 میں پہلے گرفتار ہوا تھا پبلک سیفٹی ایکٹ کے تحت, اس کے بعد اسے رہا کر دیا گیا تھا لیکن 2015 میں دوبارہ ملیٹنسی کی صفوں میں شامل ہوا جس کے بعد کافی ایکٹیو کے طور پر اسے دیکھا جا رہا تھا اور مانا جا رہا تھا کہ
कि ये मेन आदमी है जो साउथ कश्मीर के अंदर मिलिटेंसी में भर्ती करवाने में एक अहम और कलीदी रोल निभाता है। ताहम पुलिस ने आज इस एनकाउंटर साइट पर जाने से रुकने की अपील की है। लोगों से कहा है कि वो एनकाउंटर साइट पर ना जाए तब तक जब तक पूरी तरह से वहां पर उसको क्लियर ना किया जाए, और लोगों से ताउन की अपील भी की गई है पुलिस की तरफ से। ये एक अहम बात थी जो पुलिस की तरफ से आज सामने रखी गई है। ताहम फिलहाल ये जो खबर आ रही है कि आसपास के इलाके के अंदर तनाव भी है, और तनाव को देखते हुए जिला इंतजामिया भी पूरी तरह से मुतहरिक है। बात कुलगाम एनकाउंटर की कर रहे थे जो आज सुबह तकरीबन 1 बजे खत्म हुआ है। रात देर गए एनकाउंटर शुरू हुआ था तकरीबन 5 बजे, जिसके बाद रात देर गई ये खबर आ रही थी कि 2 मिलिटेंट मारे गए। ताम तस्दीक शुदा खबर जो वो सुबह 1:15 बजे के आसपास आई, और अभी ट्विटर हैंडल पर पुलिस ने इस बात की वजाहत कर दी है कि टॉप मोस्ट मिलिटेंट कमांडर जो है वो मारे गए हैं। ताहम इसमें किसी भी जानी या माली नुकसान की कोई इतला मौसूल नहीं हुई है, यानी कोलेटरल डैमेज कोई नहीं हुआ है। बड़ी बात जो है वो पुलिस की तरफ से सामने रखी गई है। तो ये बात उस एनकाउंटर की थी जो कल रात देर गए शुरू हुआ था, और बड़ी खबर की तौर पर इस वक्त इसलिए आ रही है क्योंकि माना जा रहा है कि जीनतुल इस्लाम उन टॉप मोस्ट मिलिटेंट कमांडर्स में थे जिनके पीछे पुलिस पिछले कई अरसे से उन्हें ढूंढ रही थी, तलाश कर रही थी, और कल उन्हें बाज़ाब्ता तौर पर एक एनकाउंटर में मारा गया है। बात श्रीनगर की हो रही थी, लेकिन साथ साथ जरा मौसम के मिजाज की भी बात बताएंगे आसिफ जी। आसिफ, रियासत के मौसम की अगर बात करें तो जिस तरीके से हमने कल भी आपको बताया था कि बर्फबारी और बारिशों का सिलसिला जो कल रात से दोबारा शुरू हुआ था वादी के अंदर और जम्मू खित्ते के बालाई इलाकों में, और अगर आज रात की बात करें तो कई इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला जो है वो थम गया, लेकिन जो जिस तरीके से खराब होता है तो उसका असर सीधा सड़कों पर बिजली, पानी और इस तरह की तमाम जो मुश्किलात हैं वो लोगों के लिए पैदा हो जाती हैं। और सबसे ज्यादा जो हमने देखा है कि वो जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा जो है और उसके साथ श्रीनगर लेह शाहरा, वो तमाम जो हाईवेज हैं बंद हो जाते हैं। और अगर आज जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा की बात करें तो मौसम का असर एक बार फिर से देखा गया है। आज श्रीनगर से जम्मू की तरफ गाड़ियों को छोड़ा जाना था, लेकिन जिस तरीके से कल हमने आपको बताया था कि जम्मू से श्रीनगर की तरफ जाते वक्त गाड़ियां सिर्फ 3 घंटे तक ही चल सकी थी, जबकि जवाहर टनल के दोनों तरफ दोबारा बर्फबारी का सिलसिला जो बीच में शुरू हुआ था उस वक्त दोबारा बर्फ वहां जमा होने से गाड़ियों का सिलसिला वो वहां पे थम गया था। और इसी तरीके से इसका असर उधमपुर और रामबन तक देखा गया, क्योंकि उधमपुर में भी 1000 से ज्यादा, जो पुलिस के मुताबिक 1000 से ज्यादा जो मालबरदार गाड़ियां हैं वो इस नेशनल हाईवे पे फंसी हुई हैं, जबकि रामबन तक भी कई ऐसी गाड़ियां हैं जो बीच में, जिनमें मुसाफिर भी है जो बाहर की रियासतों से भी, जिनकी तरफ से कल ये कहा गया कि उन्हें यहाँ पे कई तरह की परेशानियां आ रही, खाने पीने में उन्हें टाइम पे जो है वो चीजें नहीं मिलती। लेकिन जैसे ही मौसम साफ होगा उसके बाद ही इन गाड़ियों को आगे छोड़ा जाएगा। जो मौसम के मिजाज की अगर हम बात करें, थोड़ी देर में हम वो बात भी बताएंगे कि ड्राइवर्स क्या कुछ कह रहे हैं जो दरमांदा है, और पुलिस का क्या कुछ कहना है, वो हम दोनों आज चीजें जो है अपने नाजरीन के सामने रखेंगे। लेकिन आज मौसमियात महकमे का मानना है कि आज बाद सपहर यानी 3 बजे के बाद मौसम में एक बार फिर खुशगवार तब्दीली देखने को मिल सकती है, विजिबिलिटी भी बढ़ सकती है, और आहिस्ता आहिस्ता करके जो पिछले 2 दिन से हम हल्की और दरमियाना दर्जे की बर्फ देख रहे थे उससे भी निजात जो है वो मिल सकती है। पीर पंचाल के आर पार बारिशें भी इस वक्त जो है वो हल्की हल्की बारिशों का सिलसिला भी कई मकामात पर जारी है। लेकिन क्या कुछ उन लोगों का कहना है जो इस शाहरा पर दरमांदा होते हैं, जब बर्फ पड़ती है, बारिश पड़ती है और हाईवे बंद होता है, और सबसे बड़ा ब्लॉक जो है वो ट्रक ड्राइवर्स का लगता है, उन पर वो क्या कुछ इस पर कहते हैं, और इंतजामिया जो ट्रैफिक अमला का है वो क्या कुछ उधमपुर के अंदर कह रहा है, जरा पहले वो सुनाते अपने नाजरीन को। जवाहर टनल करे बर्फ पड़ रही है, इसलिए उधमपुर में गाड़ी रोकी हुई जी, कह रहे बर्फ पड़ रही है आगे जवाहर टनल। दिक्कत यही है कोई नहीं, यहाँ लाइन में लगे हुए हैं, आगे रास्ता बंद है। लगभग कितनी गाड़ियां यहाँ पे खड़ी होंगी? गाड़ी तो साहब बहुत गाड़ी है। जम्मू से आया क्यों रुका, इस वजह से कि रोड उधर बर्फबारी है, रोड बंद है। मैं इस वक्त उधमपुर में कल पहुंचा, इधर रोड इस वजह से बंद है कि गाड़ी उधर क्लियर हो जाएगा, उसके बाद हम छोड़ेंगे। अगर ये बारिश बंद हो जाएगा हम भी छोड़ेंगे यहाँ से। रात को 9 बजे पहुंचा इधर। आगे तो या बर्फबारी है तो पता नहीं है क्यों गाड़ी रोका, क्योंकि उधर की गाड़ियां आया थोड़ा तो पता नहीं है। रोड की वजह से, बारिश की वजह से, बर्फबारी की वजह से गाड़ी रुका है।
जी मेरा नाम गवर अली है सर। हम चंडीगढ़ से आ रहे थे श्रीनगर के लिए, मेडिसिन लोड है हमारी गाड़ी में। हमको कल से रोका गया यहाँ पे हमको बहुत सी प्रॉब्लम हो रही है, जैसे कि बाथरूम की सुविधा यहाँ पे उपलब्ध नहीं है, पानी की प्रॉब्लम हो रही है, दुकानें भी उतनी नजदीक नहीं है कि कोई राशन का सामान ला सके। हमारी गुजारिश हुकाम से ये है कि जल्दी से जल्दी ये रोड साफ हो जाए ताकि हमको यहाँ से शिफ्ट करके श्रीनगर ले जाए अपनी माल। क्या कहते हैं, क्यों नेशनल हाईवे बंद किया गया? प्रेडिक्शन के दौरान उन्होंने बताया कि स्नोफॉल हो रहा है यहाँ पे टनल पे, इस वजह से गाड़ी यहाँ पे रोक दी गई है। चलिए, ये तो ड्राइवर हजरात की बात थी, लेकिन इंतजामिया क्या कुछ कह रही है वो भी हम आपको थोड़ी देर में बताएंगे और आपको बताएंगे कि श्रीनगर और बानिहाल में क्या कुछ तफसीलात है। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे भी जुड़ेंगे, लेकिन जैसे मैंने पहले ही कहा कि कल फिजाई राब्ता भी कुछ देर के लिए मुनक़ता हुआ था और कल एयर सर्विस जो है वो पूरी तरह से डिस्टर्ब रही थी मॉर्निंग के अंदर, क्योंकि पुअर विजिबिलिटी कहा जा रहा था शहर के अंदर है, जिसकी वजह से परवाजों का आना जाना जो है वो मुनक़ता हुआ था। लेकिन आज सुबह भी थोड़ी बहुत धुंध जो थी वो साफ नजर आ रही थी, लेकिन अब हल्के जो है वो जो धूप है वो दोबारा हल्की हल्की निकलना शुरू हो गई है। इस तरीके की खबर जो है वो इस वक्त हमारे पास जो है वो आ रही है। हम कोशिश करेंगे कि हमारे साथ फिदा हुसैन साउथ कश्मीर और इरफान फाजिल श्रीनगर से जुड़े ताकि हम आपको मजीद तफसीलात बता सके। फिलहाल श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पर गाड़ियों को रोकने की बात जो है वो सामने आ रही है, क्योंकि कहा जा रहा है कि फिसलन सुबह सुबह काफी ज्यादा थी, क्योंकि कल जो बर्फ पड़ी थी जिसको हटाया भी गया था, उसके बावजूद भी बानिहाल के पास वाले मकाम पर और टनल के पास वाले इलाके के अंदर वहां पर काफी ज्यादा फिसलन थी, जिस वजह से गाड़ियों की रफ्तार जो है वो रुक गई थी। फिदा हुसैन इस वक्त हमारे साथ साउथ कश्मीर से जुड़ चुके हैं। फिदा, क्या कुछ ताजा तरीन तफसीलात है, मौसम का मिजाज किस तरीके का है और कौमी शाहराह श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह, अगर आपके साइड की मैं बात करूं, टनल के उस पार की साइड की बात करूं जहां पर कल वक्फे से बर्फबारी भी हो रही थी, क्या कुछ तफसीलात आपके पास है और महकमे मौसमियात और ट्रैफिक हुकाम का क्या कुछ कहना है? देखिए गौर, मौसम कब बदलेगा ये तो किसी को पता भी नहीं है, कब बर्फबारी होगी, कब बारिश होगी और कब धूप निकलेगी, और जो हमारा श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह है वो कब बंद होगा किसी को ये भी नहीं पता है। थोड़ी सी बर्फबारी क्या होती है तो श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे को बंद किया जाता है। अगर कल की बात करेंगे, कल अगरचे मौसम बाद दोपहर ठीक रहा और कल रात को थोड़ी सी बर्फबारी क्या पड़ी, आज श्रीनगर से जम्मू के लिए जिनको जाना था उनको रोका गया और उनको यही कहा गया कि आगे फिसलन है। अगरचे कल सुबह जो है, अगर कल दिन की बात करेंगे, जो इस पार जो टनल के इस पार की जो सड़क है वहां से बर्फ को हटाया गया, लेकिन फिसलन है। फिसलन की वजह से हालांकि अब वो कब तक ठीक होगा, क्या उसके बाद ट्रैफिक को आगे जाने की इजाजत दी जाएगी, लेकिन ट्रैफिक हुकाम अभी तक खामोशी नजर आ रहा है, क्योंकि अभी अगर हल्की सी धूप भी निकल आई है तो उस लिहाज से जो मुसाफिर है वो उन्होंने थोड़ी सी सांस ली है कि शायद हम टनल के उस पार जा सकेंगे आज। लेकिन अगर मौसम में बेहतरी आती है उसके बाद ट्रैफिक को आगे जाने की इजाजत दी जाएगी। लेकिन मौसम के मिजाज की अगर मैं बात करूं तो बालाई इलाकों के अंदर जिस तरीके से महकमे मौसमियात ने पहले ही कहा था कि बालाई इलाकों में हल्की से दरमियाना दर्जे की बर्फबारी हो सकती है, अभी की क्या कुछ तफसीलात आपके पास है? क्या मतला अबरालूद है या कुछ उम्मीद है कि बेहतर होगा? देखिए, जैसे कि मैं पहले भी बता चुका हूं कि हल्की सी धूप निकल आई है, लेकिन पहलगाम की अगर बात करें कि पहलगाम में काफी ज्यादा बर्फबारी हुई है और वहां के जो मकामी लोग हैं उनका यही कहना है कि पिछले 2 दिनों से बहुत ज्यादा बर्फबारी हुई है और हम उम्मीद करते हैं कि जो सैलानी है जो काफी कम तादाद में पहलगाम की ओर रुख करते हैं, हम उम्मीद करते हैं इस बार की जो सैलानी जो है वो पहलगाम का रुख करे और यहाँ पे वो बहुत शुक्रिया फिदा हुसैन हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। सीधे श्रीनगर चलते हैं जहां पर एयरपोर्ट का हाल हम जानने के लिए हमारे साथ इस वक्त इरफान फाजिल जुड़ चुके हैं, क्योंकि कल हमने देखा था कि सुबह की परवाजें विजिबिलिटी कम होने की वजह से मुलतवी करनी पड़ी थी, जिसकी वजह से श्रीनगर एयरपोर्ट के बाहर काफी हंगामा भी देखने को मिला था। इरफान, क्या कुछ ताजा तरीन तफसीलात आपके पास है? सुबह से परवाजें रूटीन के पर आ रही है या कुछ परवाजों को मनसूख कर दिया गया है? देखिए गवर साहब, जहां तक मेट्रोलॉजिकल ने इंडिकेट किया था वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस को लेकर, तो वो सिलसिला जो है वादी कश्मीर में खूब दिखाई दिया, जिसका असर खासतौर पे मैदानी इलाकों में भी दिखाई दिया। और फिलहाल जहां तक एयरपोर्ट के हवाले से मैं बात करूं, कल जितनी भी परवाजें जिन्हें फ्लाई होना था उसमें 2 परवाजें मनसूख की गई। एक तो गो एयर की फ्लाइट थी और साथ में जेट एयरवेज की थी जो एक दिल्ली जा रही थी और एक दिल्ली साथ ही साथ जम्मू जा रही थी। उनको बाद में कैंसिल किया गया ड्यू टू बिकॉज ऑफ पोअर विजिबिलिटी, क्योंकि ग्राउंड क्लियरेंस और रनवे क्लियरेंस दोनों एविएशन को मिल नहीं रही थी। और उसके बाद रीशेड्यूलिंग की गई है दोबारा से और पैसेंजर्स को वापस रिलोड किया गया है।
आज जिस तरह से सिलसिला वादी कश्मीर के मौसम का है, आज ड्राई स्पेल जो है वो एंटायर फोरकास्ट के हवाले से दिखाई दे रहा है, जिसके साथ साथ बताया जा रहा है कि लद्दाख रीजन में भी स्नोफॉल हो सकती है, मगर इतनी ज्यादा नहीं। फिलहाल आज जिस तरह से शेड्यूलिंग की गई है फ्लाइट को लेकर, हमने एक टेक्निकल ऑफिसर से बात की, उनका मानना है कि आज मौसम खुशगवार लग रहा है और आज सिलसिला जो है फ्लाइट को लेकर ठीक ठाक रहेगा, ताकि पैसेंजर्स को अपनी डेस्टिनेशन पर वो आराम से पहुंच सके। चलिए, बहुत शुक्रिया फिदा हुसैन हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। बानिहाल चलते हैं, जहां पर शहरा रुकती है अक्सर इसलिए क्योंकि बानिहाल के मकाम पर जो टनल है वहां पर बर्फबारी होती है और फिसलन काफी ज्यादा होती है। मुदस्सिर हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। मुदस्सिर, क्या कुछ तफसीलात आपके पास है? बानिहाल पर क्या गाड़ियों की आवाजाही को आने की इजाजत है या जाने की इजाजत है? ट्रैफिक मूवमेंट का क्या कुछ हाल है? जी देखिए, कल दोपहर के बाद जहां बर्फबारी का सिलसिला जो है वो टनल के दोनों अतराफ शुरू हुआ, तो कल ट्रैफिक को जम्मू से श्रीनगर की तरफ चलाया जा रहा था, तो कल दोपहर के बाद जो है हुकाम की जानिब से ट्रैफिक को बंद कर दिया गया। जवाहर टनल के अगर दोनों अतराफ में देखा जाए तो लवरमुंडा से जवाहर टनल तक करीब 1.5 फुट बर्फ और जवाहर टनल से लगभग नौगाम बानिहाल तक करीब 1.5 फुट बर्फ जो है वो रिकॉर्ड की गई, जिसके चलते पैसेंजर गाड़ियों को और माल बरदार गाड़ियों को ट्रैफिक हुकाम की जानिब से बंद कर दिया गया। अगर देखा जाए तो बानिहाल में टी चौक जो रेलवे चौक है वहां पर करीब 50 से ज्यादा गाड़ियां जो माल बरदार गाड़ियां हैं उन्हें रोका गया है। वहीं पैसेंजर गाड़ियां जो है वो 50 के करीब जो है रेलवे स्टेशन के पास खड़ी है, लेकिन सबसे ज्यादा गाड़ियां जो है वो मगरकोट डिगडोल के पास खड़ी है, 390 ट्रक है। बानिहाल खारपोरा में 170 ट्रक खड़ा है और रामबन, मिहाड़, चंद्रकोट के आसपास जो है करीब 400 ट्रक खड़ा किया हुआ है। तो आज की क्या कुछ खबर है? क्या मौसम अगर बेहतर है तो क्या गाड़ियों की आवाजाही हो सकती है? जी बिल्कुल, मौसम की बेहतरी जो है आज सुबह 6:30 बजे के बाद जो है बर्फबारी का सिलसिला जो है वो रुका हुआ है। उसके बाद टनल के दोनों अतराफ हुकाम की जानिब से जो मशीनरी है वो बर्फ को हटाने का काम सिलसिला जो है वो जारी है। करीब 1.5 से 2 घंटे लग सकते हैं। उसके बाद जो है ये माना जा रहा है कि अगर सड़क जो है वो स्लिपरी ना रही, गाड़ियों की आवाजाही के लिए फिजिबल रही, तो सबसे पहले जो है स्ट्रैंडेड गाड़ियों को जाने की इजाजत दी जाएगी। मुदस्सिर, जो लोग सड़क पे फंसे हैं, जिनमें ड्राइवर हैं और दूसरे पैसेंजर्स भी हैं, उनकी शिकायतें थी कि पहले उनके लिए शेड्स बनाए जाते थे, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है। क्या आपने हुकाम से बात की होगी? क्या कुछ कहा जा रहा है इंतजामिया की तरफ से? कोई इंतजाम किए गए इन लोगों के लिए? जी, बार बार हुकाम से बात करने के बाद भी कुछ भी जो है वो देखने को इन कौमी शाहरा पर नहीं मिलता है। जब कभी भी ट्रैफिक रोकी जाती है तो वो ऐसे सुनसान जगहों पर रोका जाता है जहां पर ना तो ट्रक ड्राइवरों को या फिर पैसेंजरों को खाने पीने की चीजें मिलती है और ना ही उनके कोई सहूलियात जो है मैसर रखे जाते हैं। अगर बानिहाल की बात करेंगे तो जवाहर टनल से लेकर नौगाम तक स्नो अवलांच एरिया है, वहां तो ट्रैफिक नहीं रोकी जाती, लेकिन जहां नीचे नौगाम या फिर बनिहाल में जहां 2 पैसेंजर शेड है, एक नौगाम में है, एक बनिहाल के गुंड अदलकूट में है, लेकिन वो इस तरह के खस्ता हाल है कि वहां बैठना नामुमकिन सी बात लगती है। और सर्दी का मौसम है, माइनस टेम्परेचर में है, तो पैसेंजरों को इस हालत में उन शेडों में रखना जो है वो बेकार सा लगता है और काफी मुश्किलात का सामना है। अगर ट्रक ड्राइवरों की बात करें, खारपोरा से लेकर शाबनबास, चमलबास एरिया जो है ऐसा सुनसान इलाका है, या फिर डिगडोल मगरकोट का इलाका है वहां सुनसान है, मिहाड़ जो है चंद्रकोट तक सुनसान इलाका, तो अक्सर जो है ट्रैफिक के नाके वहां लगा दिए जाते हैं जहां पर सिर्फ अपनी जो सहूलियात के लिए हुकाम ट्रैफिक या फिर जम्मू कश्मीर पुलिस जो है अपनी सहूलियात के लिए जो है इन ट्रकों को ऐसी सुनसान जगहों पर रखा जाता है जहां उन्हें खाने पीने की सख्त मुश्किलात का सामना होता है। चलिए मुदस्सिर, बहुत शुक्रिया। फिलहाल खबर यह है कि अगर मौसम ठीक रहा तो 2 घंटे के अंदर अंदर दरमानदा गाड़ियों को आगे पीछे जाने की इजाजत होगी। उम्मीद करें कि मौसम का मिजाज बेहतर हो, क्योंकि महकमे मौसमियात ने कहा है कि बाद दोपहर आज मौसम का मिजाज बदलेगा, धूप निकलेगी और हवा भी मुअत्तर हो सकती है। ये उम्मीद हम करें कि मौसम का मिजाज बदले और कौमी शहरा पर गाड़ियों की आवाजाही भी चले। लेकिन यहां पर प्रोग्राम को हम रोक रहे हैं एक छोटे से वक्फे के लिए। वक्फे के उस पार आएंगे तो आपको बताएंगे कि महकमा सोशल वेलफेयर में किस तरीके से करोड़ों रुपए का बजट ही नहीं मिला। किसकी गलती है, इस पर बात करूंगा। क्या हमारी पॉलिसी एंड प्लानिंग में फेलियर है या कि सियासत इतनी ज्यादा हो रही है कि काम करने का मन ही नहीं करता, इस पर बात करेंगे लेकिन छोटे से वक्फे के बाद। सर्दी, खांसी, जुकाम एक आम बात है। ऐसे में लीजिए 100% आयुर्वेदिक मुल्तानी कोका कफ सिरप, ताकि बदलते मौसम के साथ आप न बदलें। फास्टर है
तो है 25% फास्टर चार्जिंग और बैकअप, लिव फास्ट इन्वर्टर और बैटरी। फास्टर है तो है। सारी साफ सुथरी चीजें सेहत के लिए अच्छी हो ये जरूरी नहीं, लेकिन हमारी सेहत से जुड़ी सारी बातें निश्चय ही शुद्ध होनी चाहिए। उसी प्रकार लायन डेट्स हमारी सेहत का ख्याल रखने वाले डेट्स को दुनिया में पहली बार तकनीकी मदद से बिना हाथों से छुए स्वच्छ प्रकार से पैक किया जाता है। लायन डेट्स, आखिर स्वच्छता ही सेहत की पहली सीढ़ी है। एंड्योरा मास्क की मदद से सही वजन पाकर पाया नया कॉन्फिडेंस, पाई नई पर्सनैलिटी। एंड्योरा मास्क, बरसों से बेहतरीन, बरसों से भरोसेमंद वेट गेनर। अगर आपको शुगर है तो खांसी के दौरान ले सकते हैं 100% आयुर्वेदिक तुलसी युक्त मुल्तानी कोका कफ लिक्विड विद नो एडेड शुगर और कोई साइड इफेक्ट भी नहीं। हर खबर से आपको करवाएंगे रूबरू। ब्रेक के बाद आपका इस्तकबाल है प्रोग्राम सलाम जेके में, जो आप इस वक्त गुलिस्तान न्यूज से बराह रास्त देख रहे हैं। और अब जरा बात करते हैं महकमे सोशल वेलफेयर की। एक वो इदारा जिसका ताल्लुक रियासत जम्मू कश्मीर के चप्पे चप्पे के साथ है, एक वो इदारा जिसका ताल्लुक हमारी उन माओ बहनों के साथ है जिन्हें हम विडोज कहते हैं, डेस्टिट्यूट्स कहते हैं, ऑर्फन्स कहते हैं। और ये इदारा इसलिए अहम है क्योंकि रियासत शोरी ज़दा है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वेलफेयर की। और इस डिपार्टमेंट और इस मिनिस्ट्री के ज़िम्मे ये काम दिया जाता है कि वो बच्चों की कफालत के हवाले से, उन बच्चों की कफालत के हवाले से प्रोग्रामों को तरतीब दे जो बीपीएल के ज़ुमरे में है, जो गरीब है, जो मोहताज है, जो मिस्कीन है और जिन्हें इमदाद की ज़रूरत रहती है, और वेलफेयर स्कीमों में उनका हिस्सा जो है वो बराबर का हो। लेकिन बात जो हम करने जा रहे हैं वो ये है कि डिपार्टमेंट तो बनाए गए, पॉलिसियां भी बनाई गई, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन की बारी जब आती है तो सियासत काफ़ी ज़्यादा सुनते हैं हम, शोर काफ़ी ज़्यादा सुनते हैं, लेकिन ज़मीनी सतह पर काम बहुत कम होता है। ये बात इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि पूरे मुल्क के अंदर एक स्कीम को लॉन्च किया गया था, ICPS, और इस स्कीम यानी इंटीग्रेटेड चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम जो थी ये 2009 में पूरे मुल्क के अंदर चलाई गई थी। और इस स्कीम का दायरा जो था वो जम्मू कश्मीर भी था। और इस स्कीम को जहां पूरे मुल्क में 2009 में लाया गया और बच्चों की कफालत, उनकी परवरिश के हवाले से मुख्तलिफ जुज इस स्कीम के अंदर थे, और बजटिंग भी जो थी, वो पैसा भी जो था वो मरकजी सरकार की तरफ से फराग दिलाना दिया गया। लेकिन रियासत जम्मू कश्मीर में ये स्कीम 2017 के आसपास जो है वो शुरू की गई, एंडिंग ऑफ द 2017। 2009 में पूरे मुल्क में आई, 2017 में हमने कागजी काम शुरू किया और इस स्कीम को चलाने की कोशिश की, और 2018 में हमें पहली किस्त जो है वो मिली है। और इस स्कीम के फेलियर के होने की वजह से हजारों बच्चे जिन्हें इससे फायदा मिल सकता था नहीं मिला। एक तो पहला मामला यह है कि तकरीबन 8-9 साल का वक्फा लगा एक स्कीम को राइज करने में। अब अगर मैं डिपार्टमेंट की बात को देखूं तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुल मिलाकर 2,14,150 करोड़ रुपया जो है इस स्कीम के तहत पूरे मुल्क के अंदर बांटा दिसंबर 2016 तक। लेकिन जम्मू कश्मीर को कोई भी पैसा नहीं मिला 2014 तक। 16 तक देखिए कितना पैसा आया, 14 तक भी हमें कोई पैसा नहीं मिला, क्यों नहीं मिला, और फिर 16 तक भी कोई पैसा नहीं मिला, क्यों नहीं मिला। उसके पीछे बड़ी बात यह है कि स्कीम को जब इंप्लीमेंट कराने की बारी आई तो सियासत काफी ज्यादा हुई, न तो मैन पावर इसके लिए रखा गया और न ही दफ्तर को बनाया गया। और जब दफ्तर बनाया गया तो 2017 तब तक हो चुका था, और हमारे पास कुल मिलाकर जो है रकम जो रिसीव की गई यूनियन गवर्नमेंट की तरफ से 1.56 करोड़ रुपया जो है वो सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट ने रिसीव किया 2016 के आखिर पर, जब ये उन्होंने कहा कि हम इस स्कीम को चलाएंगे। और कुल मिलाकर अगर हम देखें तो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो फंडिंग है, लिबरल फंडिंग है, तकरीबन 100 करोड़ रुपए का नुकसान हमें हुआ है। यानी उन बच्चों का हक मारा गया है, उन बेटियों बहनों का हक मारा गया जो ऑर्फन्स थी, जो विडोज थी, जिनको ये पैसा जाना चाहिए था। तकरीबन 100 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। शायद
सियासत काफी थी रियासत के अंदर, इसलिए काम पर ज्यादा तवज्जो नहीं थी। बड़ा सवाल आज है और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ साबिक वजीर अब्दुल गनी वकील साहब इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं फोन लाइन पर। अब्दुल गनी वकील साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वेलफेयर के आप मिनिस्टर रह चुके हैं, इसलिए सीधी बात आपसे भी करूंगा। चूंकि मौजूदा डिस्पेंशन जो था, जो चली गई सरकार पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी और भारतीय जनता पार्टी, अब जो बातें सामने आ रही है, जो लोग रो रहे थे कि उनका पैसा नहीं मिल रहा है, उनको काम नहीं हो रहे हैं, अब बातें पता लग रही है कि यूनियन गवर्नमेंट की तरफ से तो पैसा भी आ रहा था, स्कीमें भी थी, लेकिन हमारे पास काम करने का मन नहीं था। यही वजह कि 100 करोड़ रुपए का चूना या नुकसान जो है वो स्टेट को उठाना पड़ा। किस तरीके से इसको आप देखते हैं, क्या ये एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर है या पॉलिटिकल विल का फेलियर है कि हम 100 करोड़ बजट जो पूरे देश के अंदर बटा वो हम ले नहीं पाए और जो पैसा हमने लिया भी उसे इंप्लीमेंट नहीं कर पाए? गवर्नर साहब, जो मुझे लग रहा है जी, जो मुझे लग रहा है ये सरकार की के किस्म का कंफ्यूजन था कि सरकार डायरेक्शन लेस थी, महबूब जी की सरकार, क्योंकि इस महकमे को बिल्कुल मफलूज रख दिया गया है। ये एक ही बात नहीं है, इसमें 3000 आंगनवाड़ी सेंटर मरकजी सरकार ने सैंक्शन किए, उन सेंटरों को भी कायम नहीं किया गया। मेरे वक्त में 6000 सेंटर ने दिए, 2 महीने में मैंने 13,000 बच्चों को रोजगार दे दिया। और इसी तरीके से जो चाइल्ड डेवलपमेंट इंटीग्रेटेड स्कीम के तहत जो पैसा आ रहा था, वो पैसा नियर अबाउट मोर देन 300 करोड़ वो भी इस्तेमाल नहीं किया गया और वो भी लैप्स हो गया। ये हैरानगी की बात है कि भाई ये सरकार क्या सोच रही थी, विजनलेस थी, कोई प्रोग्राम नहीं था। और मरकजी सरकार ने इसमें कोई बात नहीं है, कोई मतलब छुपाने की बात नहीं है। मरकजी सरकार ने इस महकमे को भरपूर पैसा दे दिया, पैसा आया, स्कीम्स आई। और इसी तरह जो विडो जो वो पेंशन के लिए अभी भी तरस रहे हैं, पैसा नहीं है अभी भी। और मैं हैरान हूं कि भाई ये पैसा कहाँ गया, किधर गया, क्यों नहीं इस्तेमाल किया गया। तो वकील साहब, क्या मैं इसे पॉलिटिकल फेलियर मानूं या एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट पर इतना ज्यादा लैतुलैल से काम लिया गया कि जो स्कीम 2009 में आई वो 2016-17 तक भी हमारे पास इंप्लीमेंट नहीं हुई और जब आई भी तो हमने सिर्फ कागजों तक ही उसे महदूद रखा। क्या मैं इसे एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर मानूं या पॉलिटिकल विल का फेलियर मानूं? ये बिल्कुल सबसे पहले पॉलिटिकल डेमोक्रेटिक सिस्टम में ये पॉलिटिकल विल की फेलियर है, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो पॉलिटिकल विल के तहत सबसर्वेंट है। जब पॉलिटिकल विल हो तो एडमिनिस्ट्रेशन भी मुतहरिक होती है, लेकिन पॉलिटिकल विल ही नहीं थी और वो ज्यादातर सियासी इश्यूज की तरफ उनका डायरेक्शन था, उनका डायरेक्शन और बातों की तरफ था। अपना जो सेंटिमेंटल जो पॉलिसी है आज तक जो रही है इन पार्टियों की, उनकी तरफ था। नतीजा ये निकला कि जो गरीब आदमी है वो सफर करते गए। बहुत शुक्रिया अब्दुल गनी वकील साहब हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। कि पॉलिटिकल विल यानी मिनिस्ट्रियल लेवल पर कहीं ना कहीं कोताहियां हुई, उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट पर भी फेलियर्स हुए और सीधी सी बात है कि ये सारा मामला साबिक वजीर आला की नोटिस में भी था, तो क्यों इन मामलों को संजीदगी के साथ नहीं लिया गया? क्योंकि हमारी रियासत में एक कसीर तादाद ऑर्फन्स की है, एक कसीर तादाद बिलो पॉवर्टी लाइन में रहने वाले लोगों की है, विडोज की है, डेस्टिट्यूट्स की है। और अगर ये डिपार्टमेंट इस तरीके से काम करेगा तो स्टेट वेलफेयर किस तरीके से आगे बढ़ सकता है और किस तरीके से हम ये दावा पेश करेंगे कि हम उन लोगों का भी ख्याल रखते हैं जिनका रखना वक्त की अहम तरीन जरूरत है, जो इस तरीके के सितम ज़रीफ़ा लोग होते हैं। तो बहरहाल बात आज इसलिए अहम थी क्योंकि 100 करोड़ रुपए का नुकसान जो है वो हमारे को हुआ है, स्टेट को हुआ है। क्योंकि इसके पीछे किनकी गलती है, बात दोहरी है, या तो एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर है या पॉलिटिकल फेलियर है। लेकिन मेरी नज़र में दोनों फेलियर्स है, क्योंकि हम फोटो सेशंस और अखबारों के लिए इश्तिहार तो देते हैं, लेकिन जब काम करने की बारी आती है तो पता ये लगता है कि हजारों करोड़ रुपया तो आता है लेकिन इस्तेमाल नहीं होता है। जी चलिए बात करते हैं रियासती गवर्नर सत्यपाल मलिक की, जिनकी तरफ से कल एक और बयान सामने आया है। दरअसल ये बयान पहले उनने साबिक IAS ऑफिसर जो कुछ दिन पहले सुर्खियों में रहे डॉक्टर शाह फैसल, उनको लेकर दिया और उसके साथ ही उन्होंने पाकिस्तान को लेकर भी एक बयान दिया। पहले उन्होंने डॉक्टर शाह फैसल को कहा कि उन्हें वो अपनी तरफ से जो नेक ख्वाहिशात का इजहार किया कि वो उम्मीद करते हैं वो अच्छे काम करेंगे, लेकिन
सरकारी नौकरी में रहकर वहां पे वो और भी बेहतर काम कर सकते थे, ऐसा गवर्नर सत्यपाल मलिक का मानना है। लेकिन साथ ही उन्होंने बार बार इन्फिल्ट्रेशन जो बॉर्डर पार से हो रही है और बॉर्डर एक्शन टीम जो पाकिस्तान की तरफ से जो अटैक्स किए जा रहे हैं, जिसमें 2011 की अगर माफ कीजिएगा 2019 की बात करें तो पहले मेजर एक जो आर्मी के मेजर थे उनकी कुछ दिन पहले जो जान चली गई और बताया गया कि बैट की तरफ से जो आईडी ब्लास्ट है, कुछ सुरंग जो है वो बिछाई गई थी। तो उस पर पूछे गए एक सवाल के जवाब में गवर्नर सत्यपाल मलिक ने कहा कि आर्मी अपना काम बखूबी अंजाम दे रही है और यही वजह है कि आर्मी की तरफ से बार बार वक्तन फवक्तन जो है पाकिस्तान को जवाब मिलता रहा है। और कश्मीर को लेकर उन्होंने कहा कि यहाँ अमन बहाली हो रही है और साथ ही साथ उनका कहना था कि जिस तरीके से चुनाव का उन्होंने एक बार फिर यहाँ नाम लिया, चाहे वो पार्लिमानी माफ कीजिएगा जो पंचायती इंतखाबात थे और उसके साथ साथ उससे पहले जो म्युनिसिपल के जो इलेक्शन हुए थे, उसमें भी पाकिस्तान की तरफ से कोशिश की गई कि हालात खराब किए जाएं। लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस की तारीफ करते हुए, उनके काम की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि वक्त पर उन्हें जवाब दिया गया और ऐसी ताकतों को दूर रखा गया। यही वजह है कि आज जो चुनाव है उसकी परसेंटेज जो पहले से कहीं बेहतर देखने को मिली। गवर्नर सत्यपाल मलिक की तरफ से और कुछ कहा गया वो भी आपको हम सुना देते हैं। बाज नहीं आ रहा है, लेकिन उसको बेहतर रिप्लाई उसी दिन दे देती है हमारी फोर्सेज, जो खबरें यहाँ नहीं आती हैं। हमारी सेनाएं बहुत मजबूती के साथ पाकिस्तान का जवाब दे रही हैं। उसका जो इन्फिल्ट्रेशन वगैरह है वो पूरी तरह से कंट्रोल में हो नहीं पा रहा। वो बहुत फ्रस्ट्रेटेड है। वो चाहता था हमारे यहाँ पंचायत के चुनाव ना हो, चुनाव हुए, बहुत दुखी है। और इस पे उसने बोखला के सलाउद्दीन ने ये कहा कि कुछ करो यहाँ के टेररिस्ट को, वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं। फोर्सेज और लोगों का भी अब हमको सपोर्ट मिल रहा है। वहां पूरी तरह से घाटी में अमन अमान है, मुकम्मल अमन अमान है रियासत के अंदर और चुनाव करवाने के लिए किसी भी वक्त तैयार हैं। ये बात कही है गवर्नर सत्यपाल मलिक साहब ने और देखना होगा कि गवर्नर सत्यपाल मलिक साहब के इस बयान पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्या कुछ कहेगा, क्योंकि माना जा रहा है कि अब अगले हफ्ते इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की भी मीटिंग नई दिल्ली के अंदर होनी है, जहां पर यह फैसला लिया जाएगा कि चुनाव किस दिन होंगे। चलिए जरा सियासत से हटकर एक और बात भी करते हैं, क्योंकि जहां मैंने पहले बात की सोशल वेलफेयर महकमे की, अब जरा बात करते हैं उस लिस्ट की जिसको लेकर काफी ज्यादा सियासत सोशल मीडिया पर देखने को मिल रही है। और माना जा रहा है कि गवर्नर सत्यपाल मलिक साहब के मुशीरों के सामने भी इस मामले को अब रखा जाएगा, क्योंकि बात है उस लिस्ट की जिसके बारे में जो लिस्ट एसएसआरबी की तरफ से जारी कर दी गई है। और ये लिस्ट जो है जूनियर असिस्टेंट इन सिविल सर्विसेज, ये लिस्ट जो है वो गुज़श्ता दिनों जो जारी कर दी गई थी और इसमें 48 सिलेक्टेड कैंडिडेट्स है। एसएसआरबी ने एक प्रोसेस लिया, उसमें ये भर्तियां अमल में लाई गई, लेकिन इस 48 कैंडिडेट्स में एक तकरीबन 29 कैंडिडेट्स जो है वो एक स्पेसिफिक एरिया से है, जिला बड़गाम के चाडूरा इलाके से। और ये इलाका जो है, ये इस इलाके से जब ये बात सामने आई कि तकरीबन 48 में से 29 कैंडिडेट्स आपके जो है वो एक ही एरिया के हैं और वहां पर उसके बाद ये चिम्मी-गोइयां जो है वो सोशल मीडिया पर शुरू हुई कि आखिर क्या वजह है कि पूरी रियासत से लोगों ने अप्लाई किया था, वहां पर कोई काबिल लड़का नहीं मिला और तकरीबन 30 के करीब लड़के जो है वो सिर्फ एक ही एरिया से मिले। तो उस पर जो बहस चल रही है सोशल मीडिया के अंदर वो मैं जरा आपके सामने शेयर करूं ताकि अरबाब इख्तिदार तक हमारी बात जो है वो बराह रास्त पहुंच सके। इसमें कहा जा रहा है कि चूंकि दो बड़े वजूहात हो सकते हैं, एक कि साबिका दौर के अंदर ये पूरी लिस्ट जो थी वो तरतीब दी गई थी और उस वक्त पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत थी। एक वजह यह कि पावरफुल मिनिस्टर एरिया को बिलोंग करते हैं, इसलिए वहां से एक मेजर चंक जो है वहां से उन्होंने लिया होगा और ये अपने लोगों को एडजस्ट करवाया होगा। एक खबर ये आ रही है। दूसरा रिएक्शन जो इस पर आ रहा है वो ये है कि एसएसआरबी के एक बहुत बड़े जिम्मेदार का ताल्लुक भी इसी एरिया से है और वहां से हो सकता है इन्फ्लुएंस होकर या कुछ और देखते हुए वहां से इस एरिया को इतनी ज्यादा रिप्रेजेंटेशन जो वो दी गई होगी। ये बात भी जो है सामने आ रही है। इसलिए अब ये कियोस वाला मामला बना है और कंफ्यूजन वाला मामला बना है और गवर्नर सत्यपाल मलिक के पास भी ये डेलीगेशन जो है वो जाएगा। आजकल के दौर ने वो मेरे ख्याल से टाइम ले लिया है, लेकिन बड़ी बात यह है कि अगर 40 लोगों का इंतखाब होना है, 50 लोगों का इंतखाब होना है, उसमें 30 लोग अगर एक ही एरिया से सिलेक्ट होंगे तो सवाल उठेंगे क्या पूरी रियासत में
और कोई नहीं था? क्या पूरी रियासत में सिर्फ एक ही एरिया इतना पढ़ा लिखा था कि सब लोगों ने वहीं से क्वालिफाई किया? इस पर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड को भी जवाब देना होगा और इस पर सरकार को भी मुतहरिक होना होगा, क्योंकि मामला नौजवानों का है और इसी से एलिनेशन बाद में बढ़ता है, इसी से मामला जो है वो बिगड़ जाता है और इसी से जो भरोसा है एडमिनिस्ट्रेशन की ओर और इन इंस्टीट्यूशंस की ओर वो हट जाता है और फिर मामला कुछ और भी देखने को मिलते हैं। बहरहाल मामला जूनियर असिस्टेंट्स का है जो लिस्ट सामने आई है और उम्मीद ये की जा रही है कि गवर्नर इंतजामिया इस पूरे मामले का संजीदा नोटिस लेंगी और इसकी तहकीकात का हुक्म देंगी। चलिए अब बात करते हैं वापस, जिस तरीके से रियासती सियासत की बात हो रही थी तो एक बार फिर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, उनकी तरफ से एक और बयान सामने आया है और कल जिस तरीके से पार्टी वर्कर्स को वो खिताब करते हुए उन्होंने दोबारा एक बार फिर लोगों पर जोर दिया कि वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार चुने और केंद्र पर भी एक बार फिर जो मरकजी हुकूमत है उस पर उनका एक बार फिर निशाना रहा। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने दोबारा से केंद्र सरकार को लेकर कहा कि जो मुल्क में इस वक्त जो हालात बने हैं और मुल्क को लोगों को जो है बांटने की कोशिश की जा रही है, सीधा और सीधा उनका ये इल्जाम मरकजी सरकार पर रहा और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि ऐसी ताकतों से बचने के लिए आप नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार को चुने। पार्टी वर्कर्स के कन्वेंशन को खिताब करते हुए डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने ये तमाम बातें कही। फारूक अब्दुल्ला ने कल 2-3 बातें काफी अहम कही हैं। एक बात ये कही कि ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन जो है वो पहले दिन ही बनेगा अगर सरकार नेशनल कॉन्फ्रेंस की आई, और उससे कबल आपको याद होगा कि फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत बनती है तो ऑपरेशन ऑल आउट को रोका जाएगा, क्योंकि किसी भी कीमत पर इंसानी जानों को जाया होने नहीं दिया जाएगा। जो ही ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन की बात उन्होंने कही और उन्होंने कहा कि कुलगाम किलिंग जिस तरीके से हुई है उस पर बड़ा अफसोस उन्हें है, क्योंकि 2016 में जो इस तरीके के हालात हुए हैं और सिविलियन कैजुअलिटीज हुई है उस पर ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन बनेगा। इस पर सज्जाद गनी लोन का ट्वीट सामने आया और सज्जाद गनी लोन ने अपने ट्वीट में इस बात को कहा है कि ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन बनाने का वो खैर मकदम करते हैं, लेकिन सिर्फ 2016 क्यों, 1985 के आसपास पर भी ये होना चाहिए और 1990 में जो कुछ हुआ उस पर भी ये चीजें जो है वो होनी चाहिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि आइंदा असेंबली इंतखाबात में नेशनल कॉन्फ्रेंस को अगर अक्सरियत के साथ कामयाबी मिली तो हिलाकतों की हकायक जानने के लिए हकायक मफाद हमी कमीशन का कयाम अमल में लाया जाएगा। अनंतनाग में एक पार्टी तकरीब के हाशिए पर नामा निगारों के साथ बात करते हुए डॉक्टर फारूक ने कहा कि हमारी पार्टी को अक्सरियत हासिल हुई तो हम किसी सहारे की जरूरत ना पड़ी तो हम हुकूमत संभालने के पहले दिन ही हलाकतों की तहकीकात के लिए कमीशन का ऐलान करेंगे। ये पोल गिमिक है, पोल ट्रेंड है, इलेक्शन ट्रेंड है या क्या है, ये फैसला तो वक्त करेगा, लेकिन फिलहाल पिछले कई दिनों से नेशनल कॉन्फ्रेंस एक के बाद एक ऐलान कर रही है। रीजनल ऑटोनॉमी की बहाली को लेकर भी फारूक अब्दुल्ला का ऐलान सामने आया है और अब ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन और ऑपरेशन ऑल आउट पर भी सवाल जो है वो सामने आ रहे हैं। हमारे साथ कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी सरदार सुरिंदर सिंह श्रीनगर से ज्वाइन कर चुके हैं हमारे साथ। सरदार सुरिंदर सिंह जी, किस तरीके से आप नेशनल कॉन्फ्रेंस के इन बयानात को देखते हैं? ऑटोनॉमी रेस्टोरेशन पहले दिन में ही हम अगर आए तो पहले 30 दिन के अंदर अंदर असेंबली का इजलास बुलाकर इसको दोबारा लाएंगे, ये बात भी फारूक साहब ने कही। उसके बाद ऑपरेशन ऑल आउट को बंद करवाने की बात कही। कल वो कह रहे हैं कि अगर कामयाब हुए और हुकूमत बिना बेसाखियों के बनाई तो ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन बनाया जाएगा, जिस बात का ऐलान उमर अब्दुल्ला ने बहुत पहले किया था, लेकिन उन्होंने 1990 और उसके बाद के हालात की बात कही थी। ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन बनाने की उस वक्त बात थी। आज इसको एक स्पेसिफिक एरिया के साथ जोड़कर 2016 के साथ जोड़कर ये कहना कि कमीशन को बनाया जाएगा, क्या ये पोल गिमिक्स है, पोल लॉलीपॉप है, क्या है? देखिए गवर्नर साहब, जहां तक ताल्लुक है, हर पॉलिटिकल पार्टी का एक अपना एजेंडा होता है इलेक्शन में जाने के लिए और उसमें इलेक्शन वोट बटोरने का स्लोगन तो जरूरी रहता है। वो कोई भी पार्टी, जैसे फारूक साहब ने आज कहा, मैं आपको ये बात कहूं कि जो आप ये कह रहे हो कि उन्होंने कुलगाम मसले को मद्देनजर रख के उन्होंने कहा कि मैं उसमें ये जो कमीशन तैयार बनाएंगे और उसके माध्यम से हम इंक्वायरीज करेंगे और बाकी चीजें। मैं छोटी सी एक एग्जाम्पल दूंगा कि जहां तक कांग्रेस जमात का ताल्लुक है, अगर आप गुलाम नबी आजाद का दौर देखेंगे और गुलाम नबी आजाद के दौरे हुकूमत में ही यहाँ कितने पुलिस अफसर जो कुकरनाग का जो कस्टोडियल किलिंग हुई थी उनको बाहर निकाल के और उन्होंने अपने
अभी भी उनके जो कुछ पुलिस ऑफिसर हैं वो जेल में हैं। तो कमीशन सच्चाई वाला कमीशन हो या झूठ वाला कमीशन हो, उसको इम्प्लीमेंट करना बहुत बोलना आसान होता है, लेकिन इम्प्लीमेंट करना बगैर कमीशन के भी हम इम्प्लीमेंट ये चीजें कर सकते हैं। अगर वो ये कहते हैं कि हम कश्मीर के अंदर जितने भी इस तरह के हालात बने जहां पे गलतियां हुई हैं उनको उभारने के लिए, तो हम इसका वेलकम करते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। रही बात वोट बैंक को हासिल करने के लिए, अगर आप देखेंगे इलेक्शन मैनिफेस्टो हम लोगों का बनता है और कांग्रेस मुल्की सतह पे एक बहुत बड़ी जमात है। हमारा इलेक्शन अपना मैनिफेस्टो बनेगा जो लोगों के बीच में जाके हम भी लोगों को बोलेंगे कि हमारा आने वाला कल जो होगा, अगर कांग्रेस को। सुरेंद्र जी, फारूक साहब कह रहे हैं कि ऑपरेशन ऑल आउट को भी बंद करूंगा अगर आऊंगा। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं गवर साहब, कुछ बातें, फारूक साहब बहुत बड़े लीडर हैं, मुझे बहुत एहतराम है उनका, मैं मतलब बोलना भी नहीं चाहता उनकी इन बातों पे ज्यादा, लेकिन जहां तक ताल्लुक है ये चीजें, जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अभी आपने देखा अफ्तपा जब लगा था पिछली बार, तो वो कब शुरू हुआ, कहां तक चलता रहा, कहां तक आज तक वो खत्म नहीं हुआ। उसके स्लोगन नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार थी, हम भी सरकार में रहे, फिर पीडीपी और बीजेपी की सरकार बनी, पीडीपी का भी एक स्लोगन रहा, लेकिन हुआ कुछ नहीं। कुछ फैसला जात होते हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तक होते हैं। हाँ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अगर एक स्टेबल सरकार बनती है, हम ये कहेंगे कि अगर कांग्रेस जमात दिल्ली के अंदर और जम्मू कश्मीर के अंदर पावर में आती है, तो हमारी जो जम्मू कश्मीर प्रति जो पॉलिसी अभी जो एक नया लाएअमल कांग्रेस भी तैयार कर रही है, मुझे लगता है लोगों के फायदे के लिए बहुत अच्छा होगा। और लोगों को कांग्रेस पे भरोसा करके एक बार, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस को भी 50 साल से देखा, पीडीपी सरकार भी नहीं आई, वो भी बन के उनको भी देखा, और भी बहुत सारी चीजें इन्होंने देखी इस दौर में जब से मुल्क आजाद हुआ। अगर कांग्रेस पे एक बार, मुझे लगता है जम्मू कश्मीर की रियासत फुल फ्लैज भरोसा करे, कांग्रेस को वोट देके जनता जनार्दन हमें पावर में लाए, तो मैं ये कह सकता हूं दावे से कि कांग्रेस एक वसी पार्टी है और इनका नजरिया बहुत खुला है और जम्मू कश्मीर रियासत के लिए बहुत अच्छा होगा। चलिए, बहुत शुक्रिया सरदार सुरेंद्र जी हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। बड़ा टेक्निकली सवाल का जवाब दिया, न फारूक साहब की मुखालफत और ना ही उनकी हामी कर ली, क्योंकि खबरें बहुत सी आ रही है कि कुछ दरपर्दा मुज़ाकरात भी चल रहे हैं, हो सकता है उस वजह से भी सवालों को टाल दिया हो। बहरहाल बढ़ता हूं जल्दी से अपनी एक और खबर की ओर, क्योंकि वजीर-ए-आज़म साहब का दौरा जम्मू कश्मीर है और वजीर-ए-आज़म साहब का दौरा जम्मू कश्मीर के हवाले से डेट्स जो है वो रिशेड्यूल हुए हैं। और अब जो वजीर-ए-आज़म दफ्तर से इत्तला मौसूल हो रही है ज़रा से, वो ये है हमारे पास कि वजीर-ए-आज़म साहब जम्मू कश्मीर का दौरा 3 फरवरी को कर रहे हैं। पहला इस तरीके का प्रोग्राम बनना था कि सिर्फ वो जम्मू आएंगे और जम्मू के अंदर तरक्याती प्रोजेक्टों का संगे बुनियाद रखेंगे और अवामी इज्तिमा से खिताब करेंगे, लेकिन अब इस तरीके की बात आ रही है कि शायद वो लद्दाख या वादिये कश्मीर का भी दौरा करेंगे इसी एक दिन के दौरान, ताकि तीनों सूबों के अंदर जाकर वो अवाम और इंतजामिया से भी मुलाकात करें और जम्मू के अंदर अवामी इज्तिमा से भी खिताब करें। इस तरीके की बात जो है वो सामने आ रही है जरा से। लेकिन खबर यह है कि वजीर-ए-आज़म साहब अब जम्मू कश्मीर के दौरे पर जो है वो जनवरी के बजाय फरवरी में आ रहे हैं और 3 फरवरी लगभग मुकम्मल हो गया है वजीर-ए-आज़म के दौरे जम्मू कश्मीर के हवाले से। जहां वजीर-ए-आज़म का दौरा जम्मू कश्मीर है, जहां पर वो एम्स के फाउंडेशन स्टोन डालने जा रहे हैं, अखनूर रजौरी पुंछ नेशनल हाईवे पर फाउंडेशन स्टोन डालने जा रहे हैं, शाहपुर कंडी उर्ज प्रोजेक्ट जो पिछले दिनों मरकजी वजारत ने जिसे अप्रूवल दी है, उस पर भी जो है वो फाउंडेशन स्टोन रखने की बात जो है वो सामने आ रही है। इस बीच बात यह है कि मरकजी वजीर नितिन गडकरी साहब भी जम्मू कश्मीर के दौरे पर आ रहे हैं 22 जनवरी को नितिन गडकरी साहब जम्मू कश्मीर के दौरे पर आ रहे हैं और सीधे उनका जलसा जो है वो कठुआ के अंदर होगा, जहां पर 160 करोड़ पर जिस पुल की लागत हुई थी वो मुकम्मल होकर तैयार हो गया है और साल 26 जून 2015 को नितिन गडकरी और डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने एक साथ होकर फाउंडेशन स्टोन इस पुल की रखी थी और अब वो ये मुकम्मल हो गया और माना जा रहा है कि 22 जनवरी को उसे अवाम के नाम वक्फ कर दिया जाएगा, जिस पर 160 करोड़ रुपया लगा है। और ये ब्रिज जो है, ये पुल जो है, तकरीबन पिछले 70 साल से लोगों की डिमांड थी कि इस पुल को जो है वो पाए तकमील तक पहुंचाया जाए और इसको पूरी तरह से बनाया जाए। तो बात हो रही है वज़ीर-ए-आज़म के दौरे से कबल नितिन गडकरी साहब की जो रियासत के दौरे पर आ रहे हैं। तो चलते चलते अब आपको ये भी हम बताते चले कि साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती का भी बयान सामने आया है और इस बार बयान जो है वो ट्वीट जो है वो मरकज के कानून के हवाले से उन्होंने दिया है और साबिक वज़ीर आला का मानना है कि जो कंट्रोवर्शियल सिटीजन अमेंडमेंट बिल 2019 मरकजी हुकूमत ने पास की है,
اس بل سے ملک کی شبی جو ہے اس کو نقصان پہنچ سکتا ہے، اور صرف مذہبی بنیادوں پر سٹیزن شپ دینا، چاہے جو آج تک ہم بنگلہ دیشی، پاکستانی اور افغانیوں کو سٹیزن شپ یہاں پر دینا اور مذہب کی بنیاد پر دینا، یہ صحیح عمل نہیں ہے، کیونکہ آج تک پاکستان پر اسی طریقے کا الزام لگ رہا تھا کہ وہ مذہبی بنیادوں پر ہر چیز کا فیصلہ لے رہے ہیں، اور سٹیزن امینڈمنٹ بل کو جس طریقے سے مذہب کے ساتھ جوڑا گیا ہے یہ ملک کی آئینی روح اور ملک کے جذبات کے خلاف ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ یہ بات جو ہے وہ سابق وزیر اعلیٰ محبوبہ مفتی نے تھوڑی دیر پہلے ٹویٹ پر جو ہے وہ اپنے کیا ہے۔ تو فی الحال آج پروگرام سلام جے کے میں ہمارے ساتھ بس اتنا ہی، کل کی لے کر کل حاضر خدمت رہیں گے۔ اپنی دعا میں ہم سب کو رکھیے یاد، لیکن اپنا فیڈ بیک ہم تک ضرور پہنچائیں۔ ہمیں دے اجازت، اللہ حافظ۔